Yo, welcome to Physics with Vinay. I am Enrol and I'm back. This is season 4, episode number 3 from the Rare series. So this Rare series mein I discuss concepts or methods or approaches that are very rare, not generally found in textbooks, not generally taught. So this particular episode mein I'm going to talk about the concept of non-linear oscillations. अपने जो usual JEE advanced syllabus में we study simple harmonic motion, we calculate the time period, ठीक है, तो वो सब standard stuff है. However, twice in the history of JEE Advanced, a question has been asked on non-linear oscillations जहाँ पे SHM नहीं हो रहा है. So that is what I'm going to discuss, and in this video I'm going to bring many types of questions, अलग-अलग chapters से, but they all have the same underlying concept, the same logical approach that I'm going to teach you, and then we'll apply it to different applications, different situations, and different chapters of physics. तो मैंने ऐसे few questions मैंने already मेरे community पे डाला होगा. If you have seen it, you might have even tried to solve those questions. So that is what I'm going to do in this episode. So first of all, I also want to say कि जो भी मैं examples इस video में ले रहा हूँ, some of them I have gotten it from research papers, 2 or 3 research papers I have studied for this video. जिसमें काफ़ी डिटेल में नॉन-लीनियर ऑसिलेशंस को एनालाइज किया है, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी किए हैं, एक्चुअल इंटीग्रेशन किया है, न्यूमेरिकल कंप्यूटर यूज करके इंटीग्रेशन वगैरह किया है, विच इज़ नॉट ऑफ यूज टू अस, बट फॉर मी पर्सनली आई वाज इंटरेस्टेड टू सी कि व्हाट इज आउट देयर इन द करंट रिसर्च दैट इज गोइंग ऑन इन नॉन-लीनियर ऑसिलेशंस. तो मैंने काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स उठाए जो JEE एडवांस के लिए रेलेवेंट है. So I'm going to put those links in the description also. So it's always important to credit the source. I cannot say कि ये questions मैंने खुद से बनाए हैं. I've taken it from the research papers जिसके links मैंने description में डाले हैं. Alright, so I hope you appreciate the work that I've put in this video. Show that appreciation in the comment section and let's go. So non-linear oscillations क्या है? SHM में क्या होता है? SHM में I know acceleration is proportional to the displacement from the mean position. ठीक है? अगर acceleration को मैंने ओमेगा स्क्वायर x लिख दिया, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ऑब्वियसली नेगेटिव साइन विल जस्ट डिनोट कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हिच वी हैव ऑलरेडी अज्यूम्ड फॉर ऑसिलेशंस टू अकर. देन आई कैन से दैट द टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा. ठीक है, सो ओमेगा स्क्वायर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन एक्सेलरेशन एंड x. यहाँ पर दिस इज आवर स्टैंडर्ड SHM. द टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड. ऑलराइट, बट if the oscillation हो रहा है and the acceleration is not proportional to x but it is proportional to some x raised to n, when n can be some any other number. ठीक है, if n is equal to 1 then SHM मिलेगा, n equal to 2, n equal to 3, 4 और even non integer होना भी जरूरी नहीं है. So मैं I'm taking the general situation and c is some constant of proportionality. ठीक है, जैसे SHM में c ओमेगा स्क्वायर था, बट इन जनरल अगर मैंने कुछ जनरल एक्सप्रेशन दिया तो इसमें व्हाट इज द टाइम पीरियड, हाउ डू वी गेट द टाइम पीरियड फॉर दिस. तो वी विल नॉट डू द फुल कैलकुलेशन फॉर द टाइम पीरियड बिकॉज उसमें इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड होगा विच वी मे नॉट बी एबल टू डू, विच इज बियॉन्ड आवर सिलेबस. बट क्वेश्चन इस पे जो JEE एडवांस में भी आया है, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो दोस JEE एडवांस क्वेश्चंस एज वेल व्हिच हैव कम ऑन नॉन-लीनियर ऑसिलेशंस. तो उसमें the type of question that can be asked in JEE Advanced is the proportionality between time period and the amplitude, or how does time period depend on amplitude, या फिर amplitude को कुछ change किया तो time period कैसे change होगा. ठीक है, SHM के केस में obviously अपने को पता है कि independent of amplitude, but in the general case time period and amplitude do have a relation. So that is what I want to find out. I want to find the proportionality. So यहाँ पर if I give you a kinematics question जहाँ पे एक particle है जिसका acceleration is equal to c into x raised to n, and obviously the acceleration is opposite to the displacement from the equilibrium position, तो ये वो oscillate करेगा, है ना. राइट में डिस्प्लेस किया equilibrium position के और acceleration लेफ्ट में आया तो ही तो वो वापस आएगा और oscillate करेगा. ठीक है, so you can say I've written the magnitude for x positive. ठीक है, and चाहिए तो यहाँ पर एक mod x भी लगा सकते हो, it doesn't matter. Alright, so can we say that the time period will depend only
on the amplitude and this constant of proportionality. और तो कुछ है ही नहीं ना यहाँ पर, right? There is no other physical quantity here. There is some c quantity which has some units and the time period depends on the amplitude. जहाँ से रिलीज किया है, एक कुछ एम्पलीट्यूड, ये x इक्वल 0 है, ये कोई एम्पलीट्यूड से रिलीज किया है x इक्वल a से, उस पर डिपेंड कर सकता है टाइम पीरियड, एंड इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पे डिपेंड कर सकता है, और तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं अपने पास, राइट? मास बोलो या कोई और जो भी बोलो, दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन c, राइट? सो लेट्स से कि t इज प्रोपोर्शनल टू सम a raised to let's say a raised to beta and c raised to gamma, ऐसा बोलता हूँ, ठीक है? बीटा एंड गामा आर सम प्रोपोर्शनलिटीज. सो क्या करूं मैं? हाउ डू वी गेट दिस बीटा एंड गामा? बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज डायमेंशनल एनालिसिस. दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली अ क्वेश्चन फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस. अपने को एक्चुअल फिजिक्स पूरा इंटीग्रेशन एक्चुअल मैथ्स रादर करने की जरूरत नहीं है. डायमेंशनल एनालिसिस से these type of questions can be solved very quickly, and that is what JEE Advanced also expects us to do. जो दो क्वेश्चन जो JEE Advanced में आए हैं उसमें भी they expected you to use dimensional analysis. So let's take a look. यहाँ पर can I say the dimension of time would be equal to dimension of amplitude raised to beta into dimension of c raised to gamma, correct? So c जो है उसका dimension क्या है? The dimension of c is dimension of acceleration divided by dimension of length, correct? So time amplitude का dimension क्या है? 1 l raised to 1, so l raised to beta. c का डायमेंशन क्या है? एक्सेलरेशन बाय x रेज टू n. सो एक्सेलरेशन को कैन आई राइट इट एज लेंथ बाय टाइम स्क्वायर्ड, ये लिख सकता हूं क्या पूरे चीज को? एक्सेलरेशन इज l बाय t स्क्वायर, सो l t माइनस 2 एंड ये नीचे n है, राइट? सो आई हैव दिस विल बिकम l into gamma into 1 minus l raised to gamma into 1 minus n t raised to माइनस 2 गामा. तो पहले गामा का वैल्यू आ गया ना, डायरेक्ट इक्वेट करेंगे. गामा का वैल्यू कितना आ गया? हाफ, माइनस हाफ, राइट? एंड व्हाट अबाउट बीटा का वैल्यू? अभी सिंपल है, गामा का वैल्यू माइनस हाफ है, सो बीटा एल का डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है, सो बीटा माइनस हाफ इंटू 1 माइनस n इज 0. ऑलराइट, सो नाउ इफ यू सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू 1, आर यू गेटिंग the correct expression for SHM? बीटा क्या है? a raised to beta है ना, तो n equal to 1 सब्स्टिट्यूट किया मैंने, n equal to 1 सब्स्टिट्यूट किया तो बीटा का वैल्यू 0 आ गया, तो a raised to 0 करेक्ट है. टाइम पीरियड does not depend on amplitude in the case of SHM, but in the other situations where n is not equal to 1, beta can depend on मतलब amplitude, time period can depend on amplitude, ठीक है? So I'll just write the result here कि time period is proportional to a raised to 1 minus n by 2, ठीक है? एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड. बस इतना ही चाहिए अपने को. इसी चीज को अपन बार बार सारे प्रॉब्लम्स में अप्लाई करेंगे. सो लेट्स टेक अ लुक एट ऑल द सिचुएशंस वन बाय वन. सो पहले एक एग्जांपल करते हैं जो मैंने कम्युनिटी पे भी डाला था. इफ यू हैव सीन इट, आई हैव 2 cones. I have 2 cones that are rigidly fixed to each other, and इनका जो डेंसिटी है that is half the density of the liquid or the water, ठीक है? तो आधा सबमर्ज्ड है. अब इसको डिस्प्लेस किया अगर मैंने नीचे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो इसका जो ऑसिलेशंस होगा तो टाइम पीरियड will depend on the amplitude. how मैंने क्वेश्चन पूछा था, if the amplitude is doubled then how will the time period change? तो you should be able to see कि अगर इसको x से डिस्प्लेस किया तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऊपर वाले कोन का आ जाएगा, ठीक है? मेन पोजीशन से x से मैंने डिस्प्लेस किया, ठीक है? सो ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, अगर ये स्मॉल r बोलूं, the restoring force would be the density of water into the volume immersed, the extra volume immersed. the extra volume कितना है? pi into r square into x, correct? Now r is proportional to x because of this angle. r is equal to x. अगर ये एंगल थीटा बोलो तो r is equal to x tan theta, correct? Tan theta is equal to r by x, right? So basically the force is proportional to r square into x into g भी होगा,
रो वी जी लिख रहा हूँ, बॉयंट फोर्स. सो आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब. एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब मतलब n का वैल्यू अपने को क्या रखना है, 3 रखना है. सो यहाँ पर n का वैल्यू 3. सो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, a raised to 1 minus 3 by 2 मतलब इज प्रोपोर्शनल टू 1 by. हो गया. फिर मैंने क्वेश्चन में पूछा था एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया तो टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा. दैट इज द आंसर. ठीक है. एंड सम ऑफ यू हैड आल्सो गिवन द करेक्ट आंसर. आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट. आई एम नॉट श्योर क्या मेथड यूज किया, बट दिस इज द फास्टेस्ट वे टू डू इट. वंस यू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, देन फिर सारे एग्जांपल्स में वही चीज कर रहा है. यू जस्ट हैव टू गेट द फर्स्ट रिलेशन, एक्सेलरेशन और एक्स का रिलेशन, बस. ठीक है. तो यहाँ पे थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है. काउंटर इंट्यूटिव इन द सेंस कि तुमने एम्पलीट्यूड को ज्यादा कर दिया तो और कम टाइम लगता है उसको वापस आने को. मतलब इफ यू रिलीज इट फ्रॉम अ फर्दर पोजीशन देन इट रिक्वायर्स लेसर टाइम टू कम टू द मेन पोजीशन. सो दिस इज लिटिल काउंटर इंट्यूटिव कंपेयर्ड टू एसएचएम. ऑलराइट. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. पहले देख लो. लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल जहां पर मेरे पास वेज है. इंस्टेड ऑफ अ कोन आई हैव अ वेज. तो यहाँ पे वेज मतलब किस तरीके से बिल्ट है कि ये रेक्टेंगुलर सरफेस है. ये जो सरफेस है वो रेक्टेंगुलर है. ठीक है. Once again, two identical wedges are joined rigidly in this manner, and उसका density is again half the density of the liquid, and इस तरीके से equilibrium में है. ये सारे examples सारे मतलब ये जो पहले अभी पिछले बार किया और ये वाला किया, I've taken it from the research paper. It's not my own example. I won't take credit for formulating this situation. तो वो research paper से मैंने लिया है. ठीक है. Alright. So इसको अगर फिर से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, once again I want to find the question is time period, how does it depend on the amplitude. क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं टाइम एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया तो टाइम पीरियड क्या होगा, या एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया तो टाइम पीरियड क्या होगा, या डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी. इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो अगर मैंने इसको डिस्प्लेस किया, नोट दैट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द कोन बिकॉज ये जो रेक्टेंगुलर थिकनेस है वो एक कांस्टेंट है. ठीक है. सो जो इमर्स्ड वॉल्यूम होगा अब आफ्टर डिस्प्लेसिंग, वो ये वाला वॉल्यूम होगा. करेक्ट. सो इसका जो वॉल्यूम है वो मैं कैसे लिखूं. ये जो एक्स्ट्रा इमर्स्ड वॉल्यूम है ये चीज है. राइट. तो द ट्राइंगल का एरिया इनटू ये थिकनेस लिख सकता हूं. सो दिस थिकनेस इज अ कांस्टेंट. ये जो थिकनेस है वो कांस्टेंट है, तो सिर्फ ट्राइंगल का एरिया के प्रोपोर्शनल आ जाएगा फोर्स. जो मेरा रिस्टोरिंग फोर्स है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू द इमर्स्ड वॉल्यूम इनटू जी. सो एक्स्ट्रा जो इमर्स्ड वॉल्यूम हुआ ये रिस्टोरिंग फोर्स है मेरा, वो ट्राइंगल के एरिया के प्रोपोर्शनल आएगा. ये जो थिकनेस है वो तो कांस्टेंट है. सो एरिया इनटू थिकनेस आई एम राइटिंग एज द वॉल्यूम. सो इट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. करेक्ट. और ये ट्राइंगल का एरिया क्या है, ये हाइट x है. एंड वंस अगेन दिस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू x. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस tan थीटा. tan थीटा वुड बी दिस बाय x. करेक्ट. सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज half into base into height. The base is proportional to x. The height is x. इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ. So it is proportional to x square. So acceleration proportional to x square. कोन में it was proportional to x cube. ठीक है. x square मतलब n equal to 2 डालो वहां पर, तो क्या बन जाएगा. टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू a raised to minus half. राइट. n equal to 2 रख दिया मैंने. ठीक है. ओके. सो क्वेश्चन में मतलब ऑप्शंस में ऐसा पूछ सकता है, या फिर एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया तो टाइम पीरियड कैसे चेंज होगा, तो अभी तो पता है आपको. ओके. नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं. लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल. दिस टाइम लेट्स इन्वॉल्व स्प्रिंग्स. सो यहाँ पर मेरे पास एक बीड है. लेट्स से इसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, एंड ये जो हाइट h है, लेट्स से कि नेचुरल लेंथ इज h. So for the small horizontal oscillations, I want to find how does the time period depend on the amplitude. ठीक है. तो अगर इसको x से डिस्प्लेस करो तो कैन आई से
कि ये जो लेंथ है वो कितना बन जाएगा, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज नाउ द न्यू लेंथ. सो मेरा जो फोर्स होगा इस बीड पे, स्प्रिंग फोर्स, वो कितना हो जाएगा, k इंटू रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच, राइट, सॉरी रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है. एंड ये अगर मैं थीटा बोलूँ तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी दिस फोर्स into sin theta. This is 90 minus theta, correct? This angle. So I want the horizontal. Obviously, the bead is only accelerating horizontally on the smooth railing. ये सब smooth है. So k into root of h square plus x square minus h into sin theta. ठीक है? So can I write h square plus x square raised to half as h into 1 plus x square by h square raised to half, and you can guess अभी मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करूँगा, क्या कौन सा approximation for small oscillations. So x is small compared to h, मतलब क्या लगा सकता हूँ, बाइनोमियल. तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करके मेरे पास आ जाएगा 1 plus x square by 2h square, ठीक है. तो ये बन जाएगा x square by 2h square, h और h कट जाएगा ना, into sin theta. और स्मॉल एंगल्स के लिए sin theta को मैं x by h लिख सकता हूँ. Sin theta is approximately tan theta is x by h. So basically acceleration is proportional to x cube. Acceleration proportional to x cube, n का वैल्यू वहाँ पर 3 डाल दो. Time period is proportional to 1 by amplitude. ठीक है, amplitude डबल किया, time period half हो गया. All right. So not a difficult question, but ऐसे questions में if students have not seen this type of question before, they will automatically get confused कि यार ये तो SHM है, इसमें तो time period amplitude पे depend कर रहा ही नहीं चाहिए, but actually it is not SHM. ठीक है, देख लो. Let's look at another question which is like the same setup जो अभी हमने किया, but natural length अभी h/2 दिया गया है. What this will do is for small oscillations, अब मैं जो spring force लिखूँ, see this is again h square plus x square. So अगर मैं force लिखूँ, that will be k into root of h square plus x square minus h, and acceleration will be force sin theta. Sin theta approximately मैं क्या लिख सकता हूँ, x by h लिख सकता हूँ, ठीक है, by m, right? h by 2, sorry, natural length h by 2 है, so actual length minus natural length, वो किया मैंने, ठीक है, sin theta divided by mass. Now अगेन इसको मैं क्या करूँ, वही बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करके h कॉमन लेकर I'll write 1 plus x square by 2h square. But now you should see that अंदर जो मेरे पास आएगा that will be h by 2 plus x square by 2h. So now पहले वाले सिचुएशन में h by 2 नहीं था, तो this was the highest power of x, ठीक है, this was the only power of x rather. यहाँ पर compared to h by 2, x square by 2h is very small, because if I take h common, ऐसा आ जाएगा. So 1 by 2 भी कॉमन ले लेता हूँ मैं. So x square by h square is very small compared to 1, तो वो मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ. So now I get SHM. ठीक है, तो ये मेरा SHM हो गया. Alright. And thus ये तो ठीक है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड. ऑलराइट, ये भी मतलब SHM में पूछ सकता है. दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन, बिकॉज़ देन यू विल हैव टू फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह पूछ सकते हैं. इसमें तो एग्जैक्ट टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है. ऑलराइट, देख लो. नाउ लेट्स लुक एट एन एग्जांपल फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. So I have two concentric rings, एक चार्ज Q है, एक -8Q है, सब XY प्लेन में है, and there is a small particle that is free to oscillate on the Z axis, which is the axis of the rings. ठीक है, रेडियस R into R दिया हुआ है, Q and Q पॉजिटिव दिया हुआ है. So for small oscillations we want to analyze किस तरीके से वो टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगा. ऑलराइट, सो एक रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, अगर ये रेडियस R है, ये चार्ज Q है, ये Z है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, KQZ
डिवाइड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर रेज टू 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू के कारण ये चीज़ हो जाएगा के क्यू जेड डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू 3/2 एंड -8 क्यू के कारण -8 क्यू जेड डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, 2r है ना रेडियस, प्लस जेड स्क्वायर रेज टू 3/2। सो लेट्स डू सम स्मॉल z के लिए अप्रॉक्सीमेशंस। तो के क्यू जेड डिवाइडेड बाय ये आर स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ मैं, आर क्यूब बन जाएगा, वो कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो बचेगा क्या, 1 प्लस जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेज टू -12 और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर लेट मी टेक 4r स्क्वायर बाहर। ठीक है, तो अगर मैं 4r स्क्वायर बाहर लूँ तो वो स्क्वायर रूट लेके 2r होल क्यूब मतलब 8r क्यूब, 8 कट जाएगा। ठीक है, r क्यूब तो बाहर ले लो, तो बचेगा 1 प्लस जेड स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर रेज टू -3/2। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 3/2 होना चाहिए। ऑलराइट, आई होप समझ में आया। मैंने 4r स्क्वायर कॉमन लिया बाहर, मतलब 2r का क्यूब बन गया, मुझे 8r क्यूब, 8 कट गया, r क्यूब तो मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, ओके, सो अभी बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन कर लेते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ पर आई हैव 1 माइनस 3z स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3z स्क्वायर बाय 8r स्क्वायर। ठीक है, तो 1 1 कट के कैन यू सी इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू z क्यूब, राइट, z स्क्वायर इंटू z है ना। अब बाकी प्रोपोर्शनलिटी वगैरह आई एम नॉट बॉदरिंग विद दैट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू z क्यूब एंड देयरफॉर द एक्सेलरेशन ऑन दिस चार्ज इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू z क्यूब। ये नेगेटिव जो आ रहा है मेरे पास, जो नेगेटिव आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मेक्स सेंस बिकॉज वी वुड लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी डाउनवर्ड्स व्हेन द चार्ज इज डिस्प्लेस्ड अपवर्ड्स। ठीक है, हो गया, z क्यूब के प्रोपोर्शनल n इक्वल टू 3। ऑलराइट, देख लो। नाउ लेट्स लुक एट एन एग्जांपल और एन एप्लीकेशन टू द चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन। मेरे पास एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, जिसका डेंसिटी इज वेरिंग एट एज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एस रो नॉट इज सम कांस्टेंट, r एज अ रेडियस इनटू स्मॉल r रेज़ टू n। सो जो स्मॉल r है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो एक वेरिएबल डेंसिटी है। ठीक है, एंड देयर इज अ थिन टनल बनाया हुआ है एंड एक पार्टिकल को सेंटर से थोड़ा डिस्प्लेस करके रिलीज करते हैं, तो वो ऑसिलेशन करेगा। तो आई वांट टू फाइंड द डिपेंडेंस ऑफ द टाइम पीरियड ऑन दैट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर एक यूनिफॉर्म डेंसिटी होता तो अपने को पता है, इट्स अ स्टैंडर्ड एग्जांपल दैट वी स्टडी इन द चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन और SHM, द पार्टिकल परफॉर्म्स SHM, बट हियर वी हैव अ वेरिएबल डेंसिटी। सो लेट्स फाइंड आउट। सो सबसे पहले तो आई वांट टू फाइंड आउट इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, राइट। तो लेट्स फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस लेट्स से x. So I know the gravitational field at a distance x will be produced only by the mass contained in it. ठीक है, so can I say the gravitational field would be equal to gm by x squared, where m is the mass contained inside it. तो m को मैं क्या लिख सकता हूँ, density which is r raised to n by r raised to n into 4 pi r square dr. mass में integrate कर रहा हूँ, density into volume. So at a distance r, I am integrating the mass inside the shell, density into the volume of the shell, which is area into thickness, and I'm going to integrate from 0 to x. ठीक है, so I'll get the mass enclosed within the radius of x. देखो कितना आ जाएगा, अपने को बस proportionality चाहिए यार। So g will be proportional to, एक तो x square है नीचे, और ये क्या बन जाएगा, r raised to n plus 2 का इंटीग्रल, which will be r raised to n plus 3 divided by n plus 3. तो proportionality चाहिए 0 से x, तो ये ऊपर आ जाएगा x raised to n plus 3. तो दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू x रेज़ टू n plus 1. ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फील्ड ही मेरा एक्सेलरेशन बन जाएगा एट डिस्टेंस से x। इस पार्टिकल पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इट्स प्रोपोर्शनल टू x रेज़ टू n plus 1. सो देयरफॉर n की जगह n plus 1 आ जाएगा, सो द टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू n की जगह n plus 1. ठीक है, सो टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू a रेज़ टू माइनस n by 2. ऑलराइट, सो फॉर द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 0, अगर n 0 है तो डेंसिटी इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर एंड दैट इज आवर यूजुअल सिचुएशन। यहाँ पे SHM होता है। n अगर 0 है तो टाइम पीरियड का कोई डिपेंडेंस है ही नहीं एम्पलीट्यूड में, एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, बट फॉर अ जनरल n वी फाउंड आउट दिस। ओके, देख लो। सो लेट्स कम टू द JEE क्वेश्चंस, जो मैंने बोला 2 आए हुए हैं ऑन नॉन लीनियर ऑसिलेशंस। तो एक 1998 में आया था, वेयर अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग ऑसिलेशंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स जिसका पोटेंशियल दिया हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी वाज kx3, x पे मॉड्यूलस लगाया हुआ है। तो इस पे पूछा गया था टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड रेज्ड टू व्हाट, ये पूछा गया था, ऑप्शंस भी थे, ठीक है। सो दिस इज ऑब्वियसली नॉन लीनियर ऑसिलेशन। सो लेट्स सी फॉर x ग्रेटर देन, इसको करते हैं, फॉर x ग्रेटर देन 0 पोटेंशियल एनर्जी इज kx3, तो पोटेंशियल एनर्जी दिया था। For x less than 0, potential energy is minus kx cube, correct? So for x greater than 0, मेरा force क्या होता है? Minus derivative of potential energy. So this will become minus 3kx square, and this is my force. And यहाँ पे मेरा force will become 3kx square for x less than 0. ठीक है? So basically it means कि positive x में negative force आएगा, negative x में पॉजिटिव फोर्स आएगा, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होगी और ऑसिलेशन करेगा। ऑलराइट, सो बेसिकली माय एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर्ड, राइट, एंड देयरफॉर टाइम पीरियड पूछा गया था। सो इफ एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, n का वैल्यू 2, सो t इज प्रोपोर्शनल टू a raised to minus half. Alright, so that was the question, and you can solve it using the concept that we've studied in this video. Okay, so now I'm going to just display the other question. JEE 2010 में आया था, if I remember correctly. So I'm just going to display it on the screen. You can try it out yourself, and you can put the answer in the comment section. You should be able to do it now that we've studied non-linear oscillations. तो एक बार question देख लो, खुद से try कर लेना. So that's it for today. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। बहुत मेहनत से बनाया मैंने, दो तीन रिसर्च पेपर्स पढ़ के ये सब एग्जांपल्स एक्सट्रैक्ट करके आई हैव मेड दिस वीडियो। सो प्लीज डू शो योर अप्रिसिएशन इन द कमेंट सेक्शन इफ यू एंजॉयड द वीडियो एंड इफ यू फाउंड इट यूजफुल, एंड आई होप योर स्टडीज आर गोइंग वेल, आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल, कीप वर्किंग हार्ड एंड आई विल सी यू एट द टॉप।